session is like that, scientific management. Okay, so this is the part of theories, a lot of authors and management experts say some kind of definitions of management. Okay, so here is scientific management, and we see like that what it is. Your voice So is breaking, ma'am. Voice is breaking, ma'am. now my voice is okay. No, ma'am. Still little bit breaking. What happened actually? Just a minute, just a moment. I will check it. Now it is okay. Yes, Hello? ma'am. Yes. Yes, Clear? ma'am. Clear? Clearly okay? Yes, ma'am. Clear now. Okay. So we have seen management theory by F.W. Taylor. Okay, he is a big expert of this fundamental of management and especially scientific management. So what contributions of Taylor's in fundamental of management? So classical theory. Okay, so we have seen what it is exactly. Have you seen my PPT, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Taylor's contribution to management, what it is. Frederick Winslow Taylor, born on 20th March 1856 and 20th March 1915. Okay, so this is the introduction of this person, and he is regarded as the father of scientific management. Was one of the first management concern. Okay, if you want to see or if you want to read his bibliography, excuse me, then you have to search on Google. Lot of books are available, so you read it and know about the person. So medieval street company, okay, medieval steel company, where he was working and machine shop worker for 2 years. What he did? Okay, he is joined medieval steel company. काय बे? नाही ना. नाही म्हटलं ना. रम्याची इथं पाहिजे ना. Saurabh, Just unmute yourself. Okay, ma'am. Who is there? Just follow the ethics. Okay, when you are attending the class, check out your Okay, ma'am. volume is mute or unmute, please, because others are disturbed. Yeah, so he is working medieval steel company, machine shop worker, years, gang boss, chief engineer at the age of 28. It's a short history. So आप सोचिए, आप भी बन सकते हैं 28 ईयर में. Depend on, learn on, and the passion होना चाहिए. If you have a passion, then definitely you want to achieve whatever you want. Got it? Then next company he joined and served for a long time. फिर उसने वो छोड़ा ही नहीं. And he noticed that no proper utilization of resource, wastage, then traditional way, develop new concept, scientific management concept. क्या होता है? Okay, so ऐसे बहुत सारे means we have seen lot of people who never know, means who never studied more,
but he is an expert in their field and they create a history regarding or their passion or their particular subjects. Okay, so that is scientific management means knowing exactly what you want mean to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. What it is? Scientific management means knowing exactly what you want. Right? What do you want? And you just follow the things, fulfill the things, and finish the task. So, to do and seeing, and they do it in the best and cheapest way. सबसे कम समय में सबसे ज्यादा काम. How we do it. और ये वही लोग कर सकते हैं जो मीन्स बहुत ही पैशनेट है, जिनका स्पीड अच्छा है, जिनका माइंड अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा है, फोकस अच्छा है, वही लोग कर सकते हैं. लॉट ऑफ टाइम वी हैव सीन दैट काइंड ऑफ पीपल कि उनके पास काम बहुत होता है बट एक भी काम दिन में सब काम ले लेते हैं. यस, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, बट टिल they never finished at least one task. So don't do this. Okay, make your list of work and then you have to be complete. और सबसे कम समय में, है ना? अगर आज मेरे पास 5 वर्क्स हैं, so I have to finish it. मुझे नींद ही नहीं आनी चाहिए रात भर अगर मैंने वो काम नहीं किया तो. So that is called passion, dedications about your work, right? So what is the principle of scientific management? Science not the rule of thumb, you know everyone. So scientific investigation should be used for talking managerial decisions instead of basing on opinion, institution or thumb rule. Everyone know, means wherever you go, you should follow the policy, you should have ethics, how to work, discipline, dedications, focus, concentration, everything you have. And main important thing, you have to take a decision sometimes. Okay, so simple example, our admin department share you the link or notices like that you need to fulfill your eligibility form and exam form. Got it? You are a management student, you are, a lot of people are doing engineering and graduation completed, everything, everyone completed their graduation, but still they don't know how to feel and what is the criteria and all. Okay, they continuously calling how to do it, what is the requirement, how should we do. That is mismanagement. Means you never read a mail properly, what it is, or you are not serious about it, or something like that. You need, means without cooperation or without help you can't do anything. Means you don't take own responsibility to fulfill the task. Risks, don't take it. You need always, but sometimes you take a risk. Yes, देखा जाएगा, आज करके तो देखते हैं, गलत होगा तो गलत होगा. अरे गलत होगा तो ही तो सीखोगे, तो गलती करनी चाहिए. मेरा तो मानना है कि मैं तो रोज ही करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है गलती करना क्योंकि सीखने को मिला. लाइफ टाइम में मैं आपको बताती हूँ, मतलब शुरू से लेके आज तक मेरे जितने भी बॉसेस थे या जितने भी जिनके भी अंडर में काम करते थे ना, वो परेशान हो जाते थे कि इसे प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, ये हमारे पास आते क्यों नहीं कि सर ये प्रॉब्लम से ये ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा. बिकॉज क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होता था. क्यों नहीं होता था? क्योंकि मैं खुद करती थी तो गलतियां होती थी. तो गलतियां होती थी तो मैं सीखती थी कि अरे ये गलती हुई है, हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा. सो नेवर गेट अ चांस टू अदर्स कि यस कोई तुम आके तुम्हारे, मतलब तुम्हें उसके पास जाने को पड़े कि यार सर ये कैसा करूं, मुझे आ ही नहीं रहा है, या मैं इसे कैसे बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. डोंट डू दिस, ट्राई इट योरसेल्फ. क्या होगा, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार गलत होगा,
बट यू थिंक कि वो 3 बार गलती में आप कितना सीखोगे? गॉट इट? सो दैट इज द लर्निंग. हम लोग every day we conducting sessions, we share PPTs, we learn lot of things. What it happened? मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी कॉपी और पेन लेके बैठ के अच्छे से नोट आउट कर रहा होगा कि what is the point we have discussed today. बोल रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से छोड़ रहे हैं. एंड अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डे. मैंने कहा था कि पूरी क्लास में टीचर 1000 बच्चों को पढ़ाता है, बट व्हाई वन सिंगल पर्सन मेरिट आता है? सो दैट द देन ये हमने देखा कि ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस और थंब रूल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं. जो सीक्रेसी मेंटेन करेगा, जो डिसिप्लिन पैशन को फॉलो करेगा, वो आगे बढ़ेगा, है ना? सो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड. कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज सब में होना चाहिए, है ना? कोऑर्डिनेट, कोऑपरेशन. जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का स्टूडेंट के ग्रुप में कोऑर्डिनेशन है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, किसका अच्छा बैकअप है, किसका अच्छा कमांड है, एवरीथिंग यू हैव डिस्कस विद ईच अदर. सो कोऑपरेशन है, सबके साथ आप मिलके डिसीजन ले रहे हो, स्टूडेंट से पूछ रहे हो ये करना है नहीं करना है, क्या नहीं. सो दैट इज. तो मैनेजमेंट में भी कोऑपरेशन होना जरूरी है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के साथ, बॉस का और उसके कलीग के साथ. हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. हार्मोनियस. वो रोज आपको डांटेगा, आप बोलेंगे यस सर मैं करूंगा. वो रोज बोलेगा आज हुआ नहीं, आप बोलोगे यस सर मैं आज करूंगा. कल फिर से बोलेगा आज भी तूने किया नहीं, आप बोलोगे यस सर मैं आज करूंगा. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में आपके बॉस को भी पता चल जाता है ये ऐसे ही मुझे बोलता है, करता कुछ नहीं है. फिर वो क्या करता है, दूसरे को अपॉइंट करता है. तो ऐसा मत होने दीजिए. वॉट एवर द डेडलाइंस यू हैव टू कंप्लीट. यस यू फील लाइक दैट कि कुछ आ रहा है तो डिस्कस करिए, रिस्क लीजिए कि ठीक है मैं कर लूंगा, क्या होगा, गलत होगा ना, कोई कुछ करने वाला नहीं है आपको. लेकिन आप गलती करने के बाद जो सीखोगे एंड सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट जो आपको मिलेगा ना, दैट इज डिफरेंट. गॉट इट? सो एनी ऑर्गेनाइजेशंस, कहीं पे भी आप जाते हो, जैसे हम लोग टीचर्स के पास कुछ भी प्रॉब्लम आया आपको, तो आप टीचर को कॉल करते हो कि मैम ये कैसे करना है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है. तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसा हमारा आप लोगों के साथ है. गॉट इट? तो कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस, कोऑपरेशन, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो दैट इज नॉट वे, राइट? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. तो जब भी आप मैनेजर बनते हो तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आना चाहिए. प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं आना है आपको. आपको एक्सक्यूज भी देना नहीं है, सॉरी सर आज मैं थक गया था इसलिए मैंने काम नहीं किया. नो, नेवर. एक आध बार ठीक है, साल में एक बार. एक आध बार ठीक है मतलब साल में एक बार ठीक है. डोंट गिव इट. छोड़ दो. आप मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हो, आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, राइट? आपने शिवाजी महाराज जो है, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका मैनेजमेंट देखा है या उनका मैनेजमेंट का बुक पढ़ा है? कोई है यहाँ पे ईगर कि जिसने किसी का मैनेजमेंट बुक पढ़ा है? यस, एनीवन? नो वन इज देयर. अरे रे रे, कोई बात नहीं, अभी पढ़ो तो आप देखो कि उस वक्त जो मैनेजमेंट था और अभी का जो मैनेजमेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है. उस वक्त पैदल पैदल चल के मतलब वॉर करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, बट उस वक्त भी मैनेजमेंट बहुत सही था. प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर ऑर्डर्स फॉलो, एवरीथिंग, मतलब सीक्रेसी, एवरीथिंग तब भी होता था. और अभी तो सोर्सेस होने के बाद में भी हम क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हैं. तब तो कोई एक्सक्यूज नहीं देता था, तब बहुत एक्टिव एनर्जेटिक रहता था. लेकिन अब सारी चीजें होने के बाद में भी हमें फोन नहीं संभलता है अपना. इतने हम लोग एडिक्ट हो गए हैं, मतलब इन सारी रिसोर्सेस के, ऐसा बोले जा सकते हैं. सो डोंट बी एडिक्ट योर वर्क. आपके रूल्स से करो कि नहीं मुझे खुद को करना है. राइटिंग वर्क करना है. अभी आपके असाइनमेंट आएंगे ही,
तो आपको राइटिंग वर्क भी करना ही है, डोंट गिव एक्सक्यूज। नेक्स्ट, scientific selection, training and development. Selection means to choose the best employee according to the need. Their skill and experience must match the requirement of the job. ये तो आपको पता है कि आप जो भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं उस फील्ड में यू नीड टू बी एक्सपर्ट. आप मीन्स यू whenever you join any organization, so they will give you some kind of profile, okay, because when they conduct your interview, that time they know ki what qualities you have and what kind of work you have to be continue. So on that basic profile they will appointed to you. So you show your dedication regarding that task. Okay, so they feel like that, you know, the person is new, fresher, so they will provide you training 3 months, 6 months. Okay, after that they will show they will watch your performance, how your work is going on. Got it? So that is most important. So फ्रेडरिक टेलर का यही कहना है कि अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसे ट्रेनिंग, उसके डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस होना चाहिए. वो पर्टिकुलर बंदे को, जो भी बंदा उस काम में एक्सपर्ट है, अगर मशीन चलाने में एक्सपर्ट है तो उसे मशीन का सब सिस्टम पता होना चाहिए. आपको एक एग्जांपल, मतलब सभी लोगों को पता है, गाड़ी तो सभी लोग चलाते हैं यहाँ पे, है ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी लोग चलाते हैं. अभी आप अगर रेगुलर चलाते हो, आप अगर उस गाड़ी को मतलब एक मशीन की तरह चला रहे हो, बस सुबह उठ गए, किक मारे और चले, तो फिर आप तो मतलब मैनेजमेंट ना पड़े तो बेटर है. लेकिन जो बंदा मान लीजिए मैकेनिक है, या फिर जो बंदा हर चीज से प्यार करता है, मतलब पैशन है उसको उस चीज का, तो जो बंदा गाड़ी चलाएगा ना, उसे पता चलेगा कि आज उसकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो आज, मतलब तो वो इंट्यूशंस आने चाहिए आपने, मतलब काम करते वक्त जो भी काम कर रहे हो, गाड़ी अगर आप रोज गाड़ी चला रहे हो, रोज गाड़ी उसका सर्विसिंग नहीं कर रहे हो, उसको मतलब मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसको जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो, तो एक दिन तो वो आपको धोखा देगी ही देगी. तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको मेंटेन करना है, प्रॉपर मेंटेन हर चीज को, आपके मोबाइल को, आपके लैपटॉप को, आपकी गाड़ी को, आपका जो भी पर्सनल सामान आप यूज करते हो, हर चीज को एकदम डिसिप्लिन, जहां की चीज वही, कभी भी आपको वो चीज लगे तो मिलनी चाहिए. जिनके पास डिसिप्लिन है वो डेफिनेटली कोई भी काम इजीली कर सकता है. टाइम आपका कितना सेव होता है अगर हर चीज आपको ने प्रॉपर जगह पे रखी, या हर चीज को आपने प्रॉपर इस हिसाब से रखा. आप अपने आप को भी प्रॉपर रखिए, टाइम टू टाइम हर चीज को दीजिए कि नहीं अर्ली मॉर्निंग वेकअप करना है, हर चीज का टाइम होता है और उस चीज को उसी टाइम में कीजिए, तो सारी चीजें आपकी एवरीथिंग मैनेज. और जिसको मैनेज करना आ गया ना, वो मैनेजमेंट का बंदा एकदम एक्सपर्ट हो गया. सो मैनेज द थिंग्स, डोंट गिव एक्सक्यूज कि नहीं मेरा ऐसा हुआ, हैव टू मैनेज. ओके, एंड थैंक गॉड कि as a human being we have everything, and especially we have a good brain, जो बहुत अच्छे से हम सोच सकते हैं. we have 2 eyes, हम सब देख सकते हैं, right, ears, कुछ भी सुन सकते हैं. so why you don't use all those things properly? सारी तो चीजें हैं, कुछ भी चीज को लेने से पहले आप देखते हो कैसी है, करना क्या है, बस रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है और सारी चीजों को मैनेज करना है. यस मैं ये सीखूंगा, यस सर आई विल डू इट, यस मैं आज ये भी पढ़ूंगा, यस मैं, अरे ईगरनेस क्रिएट करो, मैनेज करना सीखो. यस आज असाइनमेंट है क्या, यस आई विल डू इट, एटलीस्ट मैं स्टार्ट 1 से तो करूं. गॉट इट? तो ये आदत जब तक आप डालोगे नहीं, यूज नहीं, डालने से भी नहीं, आपको करना ही है रेगुलर.
तो कुछ नहीं होगा। मतलब आपने सोचना है, आपको सबको पता है मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा होता है पढ़ाई के लिए। मुझे नहीं लगता आप में से कोई 4 बजे या 5 होगा, है क्या कोई? बताइए, जस्ट अनम्यूट करिए और बताइए कि आप में से कोई 5 बजे भी उठता है। यस, और पढ़ता है। एनीवन? कहा मैडम अभी तो लॉकडाउन है, हम तो ऑफिस से आने के बाद बढ़िया मूवी देखते, 2 बजे सोते हैं और 7 बजे उठते हैं या 8 बजे भी उठते हैं, राइट? ओके महेश, ओनली वन सिंगल बच्चा इज सेइंग लाइक दैट कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वाओ, गुड महेश, ऑल द बेस्ट, you are my future manager. Yes, anyone? Oh guys, okay, no issue. So yes, who says like that? Me too, Suraj. Good. चलो देखते हैं 2 साल में आप कहाँ होते हो वो देखते हैं, देन आई विल consider कि yes, you are a really good guys and you follow whatever I am saying and definitely you achieved whatever you want within a। देखो, ये एक बात आप समझ लो कि अभी जो लाइफ है ना हमारा, बहुत ही शॉर्ट है। मतलब आपके 2021 तक तो आपकी पढ़ाई चलती है, तो आपने खुद ने डिसाइड करना है कि आपको सेटल कब तक होना है, ठीक है? 25 में या 28 में? भाई मैं तो कहती हूँ कि आपने 25th में ही मैनेजर हो जाना चाहिए। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपने, मतलब जो आपका 10th 12th का जो शेड्यूल था ना पढ़ाई का, वो अगर आपने कंटिन्यू रखा, got it, early morning wake up, whatever the task completed and just study, doesn't matter you, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। ये आप जो ऐसे बोलते हो ना मैडम काम कर रहे हो, तो ये आप हम पे ये एहसान नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, राइट? तो काम करना मतलब लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम कर रहे हो तो पढ़ना भी छोड़ दोगे, ठीक है? तो फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। अब ये उम्र में अगर आप नहीं सीखोगे इन दिस एज, तो कब करोगे? तो जितना कर सकते हो, और एक डिसाइड करो गोल कि ये ईयर लास्ट 25th, तो मैंने बोला कि 25th में आपने मैनेजमेंट में मैनेजर की पोस्ट तो आनी है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर तो आना ही है। 28 लास्ट, अब आप 28 में मैनेजर बन गए, ठीक है? तो मतलब आपका जो फ्यूचर है आफ्टर 10 years, एवरीथिंग यू हैव टू अचीव इन योर लाइफ, एवरीथिंग, मतलब 38 to 40। आफ्टर 40 के बाद तो लाइफ सिर्फ एंजॉय, आपको जॉब भी मिलने में दिक्कत हो जाती है बिकॉज ऑफ एज फैक्टर आ जाता है वहां पे, गॉट इट? सो आपको 20 years ही तो वर्क करना है। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग है ना, वो मतलब 30-35 भी हो जाते हैं तो एक ही जगह मतलब काम कर रहे हैं, नो इंक्रीमेंट, नो प्रमोशन, फ्रस्ट्रेटेड है, कंफ्यूज है बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर गाइडेंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, नो प्रॉपर ट्रेनिंग, किसी ने कोई फील्ड यूज कर ली और उसी पे काम कर रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी लोग हैं। ओके, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ फॉलो करो, जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट है उसे ज्यादा टाइम दो और वो सारी चीजें करने की कोशिश करो। तो फेडरिक टेलर का भी यही कहना है कि अगर बंदा, कोई भी पर्सन अगर वो अनडेवलप्ड है तो उसे डेवलप करो, उसे ट्रेनिंग दो ताकि वो अच्छा काम कर सके, ठीक है? सो साइंटिफिक डेवलपमेंट रेफर्स टू क्राइटेरिया फॉर प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, so that work is done with full efficiency। सही है ना? अगर आपको आपके मनपसंद काम करने को मिल गया, जैसे अगर आईटी का बंदा है और अगर मैं उसे बोल दूं कि बाबा तू अकाउंट्स कर, करेगा, उसे टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूज रहेगा क्योंकि उसे डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, क्या उसे समझता नहीं है, क्या डेटर्स है, क्या क्रेडिटर्स है, क्या एसेट है, बिकॉज आईटी। और अकाउंट के बंदे को अगर मैं आईटी दूं तो उससे तो कुछ भी नहीं समझेगा, क्या कोडिंग है, कहाँ के लिंक का। बट अगर मैं प्रॉपर वर्क प्रॉपर पर्सन को दूं तो कम समय में
ज्यादा से ज्यादा काम होगा एंड डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा देन he will getting promotions, transfers, and they learn lot of things. They work efficiently and learn more and more things. They develop day by day their self and others also. Got it? तो आपका जो फील्ड है ना, आप उसी में ही अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए, अपने आप को उस टॉप लेवल तक लेकर जाइए कि यस ठीक है, अभी तो मैं ये इसमें एक्सपर्ट हो गया, अब इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर जाना है तो मुझे क्या सीखना होगा, कम्युनिकेशन सीखना है, यस आई नीड टू लर्न लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रेंच सीखो, जापानीज सीखो, जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ, फ्लुएंट सीखो, बहुत कुछ है सीखने के लिए। एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे बस मैं खुश हूँ, मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया, बस अब मुझे 20, 30, 40 मंथली मिल रहा है, मैं खुश हूँ, बस हो गया, फिर फिनिश सब आपका। भूख होनी चाहिए, हंगरी मतलब कैसे भूख लगता है तो इंसान कैसे फटाफट, तो वैसा भूख होना चाहिए कि यार ये अभी आगे टॉप पे क्या जाना है, उसके टॉप पर जाने के लिए क्या करना है। सो ऑलवेज थिंक, ऑलवेज डू एफर्ट, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एफर्ट्स लेना है, क्योंकि सारी चीजें अभी मार्केट में अवेलेबल है ना। नेक्स्ट, बोर हो रहा है लेक्चर एनीवन? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट। No, ma'am. No, ma'am. So No, division ma'am. of, okay, thank you. So division of work, it's a most important division of work and responsibility. Yes, I agree कि you all people are working, you have to learn something new, बहुत सारी चीजें आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आर्ट में मतलब आर्टिस्ट है, पेंटिंग अच्छा है उनका, तो मतलब वो रोज डेली पेंटिंग करते होंगे, डांसिंग होगा, कोई सिंगर होगा, कोई म्यूजिशियन होगा, मीन्स लॉट ऑफ काइंड ऑफ पीपल आर हियर, और होना भी चाहिए क्योंकि आप सब लोग यूनिक है और हर एक में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, आई नो इट, सब कुछ, तो जो भी आप में अच्छा है यू शुड लव इट, पैशन करो और उस चीज को भी आप करो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो समटाइम्स यू जस्ट लिसन म्यूजिक, स्ट्रेस चला जाता है। जिनको अध्यात्म में रुचि है तो वो लोग कोई भगवत गीता या कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं या उनका प्रवचन सुन लेते हैं तो दे फील रिलैक्स्ड। बहुत स्ट्रेस आ रहा है, अच्छा डांसर है, डांस कर लिया तो फील स्ट्रेस। तो बहुत सारी चीजें हैं स्ट्रेस भगाने के लिए, पहले नहीं थी लेकिन अभी है। सो यू डू इट। जिनको नहीं आता है तो करके देखो डांस, 2 दिन तकलीफ होगी, तीसरे दिन आपको फील, अपने आप को अच्छा फील कराइए। गॉट इट? मेरे साथ ऐसा होता था जब भी, मतलब मुझे तो डांसिंग सिंगिंग बहुत पसंद है, तो जब ऑफिस में मैं जाती थी तो सुबह ही जाते से मीटिंग बहुत सारा होता था, ढमका ब्ला, बहुत मुझे बहुत इरिटेशन होता था, वर्कलोड था, करना था, कुछ बनना था। तो मैं क्या करती थी ना कि वॉशरूम में जाती थी, ठीक है मीटिंग हो जाता था, देन आई जस्ट गो वेंट टू द वॉशरूम एंड लिसनिंग फेवरेट म्यूजिक, बहुत अच्छा सॉन्ग सुनती थी, विद इन अ सेकेंड मुझे एनर्जी आ जाती थी एंड स्टार्ट माय वर्क विद न्यू आइडियाज एंड थॉट्स। मैं कभी इतना नहीं सोचा, ठीक है बोल दिया, क्योंकि मुझे तो काम उनके साथ ही करना है, रोज हमें उनके साथ ही मतलब बैठना उठना है, तो ऐसी सिचुएशंस आती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि कोई रो देता है या कोई अब्यूज वर्ड यूज कर देता है, डोंट डू दिस, ये सब आपके लिए है। तो ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ। आप हमेशा अपना टारगेट कि यस एक दिन मुझे यहाँ बैठना है, ये चेयर पे मुझे बैठना है, तो मुझे अपने आप को मोटिवेट करना है, और मोटिवेट करने के लिए मुझे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, विदाउट एक्सक्यूज, विदाउट क्रिटिसाइज एनीवन, विदाउट एनी हेजिटेशन। घर में भी होता है, फैमिली में भी हम लोग मतलब जब होते हैं 5-6 लोग तो कुछ ना कुछ होता है, तो ठीक है थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, अच्छा आपका जो भी अच्छी चीज आपको लगती है ना वो करिए,
डांस लगता है, थोड़ा डांस के स्टेप्स, कुछ तो भी नया क्रिएटिव करते रहिए, इनोवेटिव करते रहिए लाइफ में। किसी की स्टोरी सुनिए, किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, बट निगेटिव मत सोचिए, नेवर। आपका फिनिश्ड हो गया समझ लीजिए। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, वहां पे हमने देखा था कि 3 इडियट मूवीज में मतलब पॉजिटिव निगेटिव थिंग्स जो बताई गई है, तो उसे भी आप सोचिए कि नहीं, वहां पे वो बताया था एक्चुअली एवरीथिंग इज इमेजिनेशन, बट हमारे लिए वो मोटिवेशन होता है। हम लोग मूवी क्यों देखते हैं? क्योंकि मोटिवेट होने के लिए। जो अभी ये 83 आपने देखी होगी, क्योंकि सब लोग को क्रिकेट तो बहुत पसंद है, स्पेशली गाइस, राइट? मैंने भी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब उस वक्त का वर्ल्ड कप जो दिखाया है, उस वक्त जो क्रेज था वर्ल्ड कप का, कपिल देव एंड ऑल, बहुत ही, मतलब मूवी देखते वक्त तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आफ्टर दैट जब मैंने सोचा कि नहीं ये तो उस वक्त का था, पुराना था, बट डजंट मैटर, मैंने तो एंजॉय के लिए देखा था। सो स्ट्रेस जो है वो रिलैक्स हो गया। मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट क्रिकेट, सॉरी सॉरी गाइस, बट जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक स्ट्रेस चला गया, वो जो स्पिरिट था। मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, सो लेकिन क्रिकेट मुझे पसंद नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा एक स्पिरिट था जो स्पोर्ट्स पर्सन में होना चाहिए ना, एक एनर्जी, एनर्जेटिक और एक एंथुजियाज्म। यस, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कोई बात नहीं, अभी सिक्सर नहीं लगा तो बाद में लगेगा, आगे चौका नहीं लगा तो बाद में लगेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग्स इट हैपेंड। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम तो ट्राई। स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, वो कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देता है। तो आपको भी वैसे ही करना है। आप में से कोई मतलब होंगे मैक्सिमम पीपल स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड, तो खेल लीजिए थोड़ा बहुत, अगर जब आपको स्ट्रेस आता है तो, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालिए, फिर बहुत स्ट्रेस मत रहिए। थोड़ा बहुत डांस कर लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, स्पोर्ट्स खेल लीजिए, जो भी आपको पसंद है, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लीजिए, तो स्ट्रेस फील हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी फेडरिक टेलर वही कहता है कि आप रिस्क लो, और आपके पास अगर बहुत सारा काम है तो उसको डिवाइड करो। डिवाइड करो मतलब टाइम के साथ करो कि ठीक है 1 घंटे में इसका आप इतना आपको हो जाना चाहिए, नेक्स्ट वीक फिर सॉरी 1 घंटा उसको, 1 घंटा ऐसे, उसका क्राइटेरिया बनाओ और स्पीड के साथ उस वर्क को फुलफिल करने की कोशिश करो। गॉट इट? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो होगा नहीं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को खाना बनाना आता है, लेकिन जिनको भी आता है तो वो लोग शुरू की सिचुएशंस याद करते होंगे कि शुरू में उनको नहीं बनाना आता था, या फिर स्टार्टिंग जब की तो थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा टेस्ट नहीं बना, लेकिन अभी वो रूट हो गए, अभी उनको आ गया, क्योंकि रिस्क लेना उस वक्त, अभी तो वो यूज मतलब इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो हम जी नहीं सकते। तो अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर टेस्ट आना चालू हो जाता है, और टेस्ट आने के बाद हमें हमारे ही हाथ का बना हुआ अच्छा लगता है। ट्रू है ना? सही है कि नहीं? क्या बात है, आप में से कोई नहीं बनाता है खाना? ओ इम्पॉसिबल। नहीं, लड़कियों मैगी को नहीं, मैगी लड़कियों को नहीं, मैगी वैगी नहीं, मैगी में कोई टेस्ट नहीं होता है। बाकी के खाने के बारे में बताओ। एनीवे, तो मैम आई एम कुकिंग। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। खिचड़ी मैम। यस, मतलब आप लोग रिस्क लेना जानते हो। चलो यार, खाना ही तो है, अब खुद को ही तो खाना है, जैसा भी बनेगा रिस्क लेके देखते हैं क्या होगा। तबीयत ही खराब होगी ना अगर नमक ज्यादा हो गया या फिर नो मैम आई एम मेकिंग टेस्टी फूड। वाओ सुपर्ब। सो समवन हैव अ गुड क्वालिटीज, राइट? मतलब आप में से कोई बच्चे हैं जिनमें बहुत अच्छी मैंने अभी बोला कि कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली, बट सभी नहीं हो सकते। गॉट इट? सो जिनको आता है वो तो बढ़िया टेस्टी फूड एंजॉय करते होंगे एवरीडे, राइट? जिनको नहीं आता है बेचारे ठीक है, बट सीख लो। नाउअडेज ऐसी सिचुएशंस है ना, कि उस दिन एक ऐसा ही वीडियो आया था, जस्ट लाइक जोकिंग, कि अभी लास्ट पैंडेमिक में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया कैसे क्या, अभी ये पैंडेमिक में हमको और कुछ सीखना है, तो वो अचार पापड़ वगैरह वगैरह का जाम जस्ट सही, तो करना है बाबा, करना तो पड़ेगा। सीखने से क्या होगा?
नॉलेज ही मिलने वाला है ना, वेस्ट तो नहीं जाएगा, आड़ा टेढ़ा कैसा भी बनेगा बट बनेगा। सो ट्राई, रिस्क लेना चाहिए, हर चीज में रिस्क लो। जितना आगे आगे करोगे, सर मैं करूंगा, यस सर आई विल डू इट, तो वो जो एंथुसियाज्म होता है ना आप में का, वो आपको सिखा देता है, तो वो करना चाहिए। तो फेडरिक टेलर भी यही कहते हैं कि yes, what happened? Yes, okay. Can anyone see the second slide? What slide? Okay. Have you seen my slides? Only second slide, ma'am. Which? Continue. Taylor's contribution to management. Okay. One second, we'll share next. Now it is okay. Yes, continue. Division of work. Yeah. So I am telling about this, whatever the examples we have given on that particular slides. Okay. So प्रैक्टिस करने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आप अच्छा और इफेक्टिव काम करने लगोगे, एंड डेफिनेटली आपको आपके परफॉर्मेंस पे रिवार्ड भी मिलेगा, क्योंकि आपका एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस है। हमें अवार्ड या रिवॉर्ड कब मिलता है? जब हम उस काम को बहुत ही परफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने आप को, अपने काम को, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे परफेक्ट करने की कोशिश करिए एवरी टाइम, चाहे वो आपका स्टडी हो, चाहे आपका राइटिंग हो, चाहे आपका एनी कोई भी आर्ट हो। पेंटिंग वाला तो कभी भी मुझे नहीं लगता जो पेंटिंग बनाता होगा वो अपनी पेंटिंग आधी अधूरी छोड़ता होगा, उसे तो चैन ही नहीं आता, बिकॉज लॉट ऑफ थॉट्स उसके माइंड में होता है, और जब तक वो पूरे कागज पे या कहाँ पे भी नहीं लिखेगा वो सोएगा ही नहीं रात भर, पूरी इमेजिनेशन यहाँ होती है और उसका ध्यान पूरा उस पे फोकस। मुझे आर्टिस्ट लोग बहुत पसंद है क्योंकि फोकस बहुत अच्छा होता है उनका, बहुत ही मस्त होता है। सिंगर भी जब तक वो प्रॉपर वे में गाएगा नहीं, उसे रात भर नींद नहीं आएगी। डांसर भी जब तक वो पूरा जो भी ये होता है रियाज करेगा नहीं, वो जो तोड़ा बोलते हैं ना क्लासिकल डांसिंग में, वो अच्छे से वो जब तक परफेक्ट नहीं करेगा तब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा अच्छे से स्टेज पे, क्योंकि हैंड्स, मूवमेंट, पोस्चर, मैनेजमेंट में भी वही है। आपके पास बहुत काम होगा, यू हैव अ लॉट ऑफ, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डजंट मैटर आपके पास 10 काम है, बट 10 काम में से 10 भी काम आपके परफेक्ट है क्या, ये आपको खुद को जज करना है। तो आप आपके काम के खुद जज हो। गॉट इट? नेक्स्ट, yes, anyone want to say like differential payment system? Yes, have you seen this slide, differential payment system? No, ma'am. Excuse me. Now, Yes, ma'am. so what it is, differential payment system is worker received piece rate benefit which will attract the worker to work more for more amount of use would be created to raise the standardization of output, to promote the workers to produce more and perform more tasks that before and utilize waste time to earn more wages. So in factory means according to Frederick Taylor ki all factory workers, okay, all factory workers work in factory or any manufacturing company. So what happened with them कि if they don't get a proper wage amount, डे हिसाब से होता है वेजेस, राइट, तो उनका इंसेंटिव, उनका जो भी पेमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर उनको, क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, अगर उनको वो अगर हमने प्रॉपर वे पे नहीं दिया तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। देखो कितना अच्छा सोचा है उसने। सो वॉट एवर द अमाउंट वी नीड टू पे देम should be proper,
अदरवाइज वी डोंट गेट एन आउटपुट। अभी भी हमने पैंडेमिक में देखा, भाई किसी को सैलरी तो वो काम ही नहीं करेगा, बोलेगा यार सैलरी नहीं मिल रही क्यों करूं। सो परफॉर्मेंस जीरो, हाँ सर ठीक है सर, कर दिया सर, होगा सर, करूंगा सर, ऐसे। सो उसका कहना है कि नहीं, काम प्रॉपर होना चाहिए, वेजेस भी प्रॉपर, इंसेंटिव्स भी प्रॉपर मिलने चाहिए। ओके, मैनेजमेंट का ये फंडा है। आप लोग भी जब आपको कोई कहीं से अपॉइंटमेंट आता है या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो आप देखते हैं कि पैकेज कहाँ पे अच्छा है, जहाँ पे अच्छा पैकेज वहां पे आप काम करते हो। तो ये सारी चीजें भी फेडरिक टेलर कहता है कि डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एक काम का इतना अमाउंट आपको पे होना चाहिए। टू प्रमोट द वर्कर्स, एप्रिसिएशन होना चाहिए काम का। मतलब आप काम कर रहे हो और कोई आपको अप्रिशिएट ही नहीं कह रहा है, कोई गुड भी नहीं, ऑलवेज क्रिटिसाइज करता है, तुमने ऐसा किया वैसा किया, मतलब ऑलवेज कि अच्छा नहीं है, मतलब अननेसेसरी कुछ तो भी मिस्टेक्स निकालना। दैट इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट। appreciation is most important, boosting is most important in any organization and it happened। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं मिलता है तो वर्कर प्रेशर से ही डाउन हो जाता है। बट इफ यू अप्रिशिएट योर कलीग्स, योर वर्कर्स, योर एम्प्लॉय, दे डेफिनेटली अच्छा वर्क अगर आपको चाहिए, आपकी टीम को अगर आपको अच्छे से रखना है, एज अ अगर आपको वाकई में गुड लीडर अच्छा बनना है, तो आपको आपके टीम मेंबर्स को हैप्पी रखना होगा। एंड नॉट ओनली आपको भी हैप्पी रहना होगा, तभी काम अच्छा होगा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, आपको भी प्रमोशन मिलेगा, उनको भी प्रमोशंस मिलेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम you should pay them or anyone proper manner। ठीक है, then reorganization of supervision, concepts of separation of planning and doing and functional foremanship were developed। ये तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लॉट ऑफ पीपल कमिंग, someone is joined new, someone left, every time they, but it's not impact on organization, but they going on, and you also learn lot of things from these or those organizations। so reorganization of supervision means जो भी आप लर्न कर रहे हो, आपने जो भी प्लानिंग किया, वेस्ट नहीं गए, किया है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सीखी है। और हर एक का सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशंस का वर्किंग सिस्टम इज डिफरेंट, बट फंक्शनल फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट यू लर्न लॉट एंड यू डेवलप लॉट। सो वर्कर्स का भी वैसा ही होता है, जितने भी एवरीवन, हम सभी के लिए ये लागू है कि हम लोग लर्न कर करके सीखते हैं, डेवलप करते हैं, प्रमोट होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं और टॉप पे होते हैं। ठीक है, नाउ इकोनॉमी, व्हाट इट इज। efficient cost accounting system should be followed to control cost, which can minimize the wastage and thoroughly reduce and thus eliminate it। बहुत बार होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कि एक प्रोडक्ट की एक कॉस्ट डिसाइड की जाती है, और जब वो मार्केट में सेल होता है ना, सारी प्रोसेसिंग के बाद, तो सेल होने के बाद उसका प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है कि इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। अगर वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हम, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या कर देता है कि नहीं यार ये मार्केट में नया है और इसका सेल नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, अगर वो चीज 10 रुपए में है तो उसको 8 रुपए में बेचना चालू करेगा। डिपेंड ऑन एक्चुअली मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट तो मार्केट में चलाना है, तो वो 8 कम कर देगा कॉस्ट। फिर वो देखेगा कि प्रॉफिट हो रहा है क्या, यस उसमें प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जब 10 रुपए कॉस्ट रखा था तो वो 100 रुपए ही रोज का सेल होता था, लेकिन जब से उसने 2 रुपए कम कर दिए, 8 रुपीज कर दिए, तो उसका 200 300 ऐसा सेल हो रहा है। तो ये भी स्ट्रैटेजी जो है मार्केट में, ये सब चीज
यूज करने आनी चाहिए। तो एवरी टाइम हम देखते हैं कहीं पे भी जाते हो तो डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफर ऑफर 1 2 गेट बाय 1 फ्री आउट ऑफ ये सब हम देखते हैं। यस एनीवन हैव प्रॉब्लम्स? एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चंस? नो। सो समटाइम्स हमें उसे कट करना होता है या फिर हमें वो एलिमिनेट करना होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, चले तो चले, नहीं तो वो मार्केट में डिमांड नहीं हो तो उसका क्या हो जाता है, सेल नहीं होता। बट यस, हेलो, I don't know. I just warn everyone, but people are not listening carefully. So that is the economy. और हमें आपको पता है अभी पैंडेमिक में भी हमने बहुत इकोनॉमी फेस की है। ये सारी चीजें चलेगी मार्केट में, है ना, बट यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, जो जिसको जैसा लगता है वो तो लेना ही है, बट ये सारी चीजें होती है, बट होती है अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है मार्केट में, है ना, इकोनॉमी कम डाउन, बट निगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रह के उससे हमें आगे लेके जाना है। ओके, वी नीड टू फॉलो वॉट एवर न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू प्लान। अगर आपने बहुत अच्छी अच्छी बुक पढ़ी है, फेडरिक टेलर, जेम्स स्मिथ, लॉट ऑफ पीपल, तो वहां पे उन्होंने दिया है कि क्या क्या नई नई स्ट्रेटेजी यूज करनी है। आपने देखा होगा चाइना, जापानीज जितने भी है वो एवरी टाइम न्यू स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, कुछ तो भी नया इनोवेटिव। जापान वगैरह आप देख, नया एवरी टाइम नया करता है। हम एंड हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं उनकी चीज को, बट हमने भी कुछ नया इनोवेटिव करना चाहिए। अगर वो बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो डेवलप योर स्ट्रेटेजी, योर प्लान, डेफिनेटली आप भी बना लोगे। ठीक है, सो एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन? कोई है ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है? अगला सेशन हम कल देखेंगे। कल शायद हमारा 6 PM है, और आपको एसएपी का सबको फिर से रिमाइंडर मैं दे देती हूँ। ओके, एनीवन वांट Yes, टू ma'am. आस्क एनी क्वेश्चंस? नो? No. ओके, सी यू, बाय बाय, सी यू टुमारो। Good night, ma'am. Thank you, ma'am. यस, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.